Myself Megha Pathak from DPS Sultani Ramachor, your bio teacher. Children, today we are going to discuss the problems associated in building large dams. And in a previous video, we have studied about dams. See, there are three major problems which are associated in building large dams. First problem is social problems. See, a large number of tribal people and peasants, they are displaced. मीन्स जो ट्राइबल पीपल हैं जो उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर डैम बनाया जा रहा है उसके आसपास रह रहे हैं, दे आर डिस्प्लेस्ड विदाउट गिविंग प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन, और ना ही उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन मिल पाता है, मीन्स रहने की जगह मिल पाती है, और ना ही उन्हें प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिल पाता है. एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सी, लार्ज स्ट्रक्चर डेफिनेटली रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. बहुत ज़्यादा इसमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है. एंड समटाइम्स दीज प्रोजेक्ट्स आर नॉट सो मच बेनिफिशियल. जितना हम इनमें स्पेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इनसे प्रॉफिट बेनिफिट नहीं मिल पाता है. एंड थर्ड प्रॉब्लम इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. सी, व्हेन वी आर बिल्डिंग अ लार्ज डैम, डेफिनेटली इट्स वाटर रिजर्वोयर विल ऑल्सो बी लार्ज. जो वाटर रिजर्वोयर होगा वो भी लार्ज होगा. एंड सो मेनी प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स दे गेट सबमर्ज्ड इन दैट एरिया, दोज हु आर लिविंग इन दैट एरिया. तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है. सो दीज आर द थ्री मेजर प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड इन बिल्डिंग लार्ज स्ट्रक्चर्स. In recent times, the environmentalists have opposed the construction of large dams like Tehri Dam, which is the highest dam on river Bhagirathi in Uttarakhand, and Sardar Sarovar project in Gujarat. देखिए, जो लार्ज डैम्स हैं इनसे हमारे एनवायरनमेंट पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है. फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग टनलिंग प्रोसेस, टनलिंग मटेरियल्स एंड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स हैज़ डिस्ट्रप्टेड द नेचुरल सेटअप ऑफ दैट एरिया. And the Sardar Sarovar project in Gujarat, the Narmada Bachao Andolan protested against raising of the height of Sardar Sarovar Dam. आप लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में सुना होगा और सेव द नर्मदा मूवमेंट, एंड दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर, which was later joined by Arundhati Roy and Baba Amte. And they all protested against raising of the height of Sardar Sarovar Dam because it causes destruction of wildlife, because many of the animals are affected, and it will lead to displacement of more than 1 million people. It will affect many tribal people. Now, next topic is water harvesting. Water harvesting is the direct collection of rainwater for direct use or recharging it into the groundwater for indirect use. See, groundwater is a precious natural resource. It plays a significant role in our national economy and in our daily life. It is the primary source of water for domestic, industrial as well as irrigation sectors. And to cope up with the growing demand, there has been rapid development of groundwater supply. But increasing demand, especially in urban areas, has led to the depletion of groundwater and associated problems. Hence, there is a need to conserve the surplus water during the monsoon by water harvesting, and recharge techniques must be adopted as the water management agenda. देखिए, ग्राउंड वाटर जो कि वाटर का एक प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है, और आज के समय में हम ज़्यादातर ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो या फिर डोमेस्टिक यूज़ हो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो. बट दिस ग्राउंड वाटर शुड बी रिचार्ज्ड, and for this we should promote water harvesting. So there are some benefits of rainwater harvesting. Water becomes available round the year for drinking and irrigation, and it reduces community dependence on groundwater for domestic use. And if we promote rainwater harvesting, so it reduces chances of flooding during rainy season, and it recharges the groundwater. और अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो ये हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी पूरे साल अवेलेबल होगा ड्रिंकिंग और इरिगेशन के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाटरशेड मैनेजमेंट. अ वाटरशेड इज अ स्पेसिफिक बाउंडेड एरिया वेरिंग इन साइज फ्रॉम अ हेक्टेयर टू सेवरल 100 meters, and it is jointly managed by a large number of farmers
for the purpose of collecting and storing rainwater or water from rivers, streams and ground water to be used in future for drinking, agriculture and other purposes. देखिए वाटरशेड मैनेजमेंट जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट करके उसको स्टोर किया जाता है, जिससे पानी पर्कोलेट होकर के जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी बढ़ाता है और दूसरा ये पानी पीने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए और दूसरे कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं. वाटरशेड मैनेजमेंट एम्फेसाइज साइंटिफिक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन of all water resources that receive rainwater in order to increase biomass production. And watershed management, it helps to develop primary resources of land and water. देखिए वाटरशेड मैनेजमेंट की हेल्प से जो वाटर के प्राइमरी रिसोर्सेज हैं वो रिचार्ज होते हैं, जैसे ग्राउंड वाटर है, which increases the production of secondary resources of plants and animals for their use in a way that will not result in ecological imbalance. और जो स्टोर्ड वाटर है उसको प्लांट्स और एनिमल्स फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, चाहे पीने के लिए और दूसरे कामों के लिए, और जिससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस नहीं होता है. एंड इट रिड्यूसेस द रन ऑफ वाटर, फ्लड्स एंड ड्राउट्स. एंड वाटरशेड मैनेजमेंट it helps to increase the life of downstream dams and reservoirs. देखिए जब बारिश आती है, जिन दिनों मानसून होता है उन दिनों बहुत ज़्यादा पानी होता है, चाहे नदियों में देखें और किसी भी स्ट्रीम में, तो उससे फ्लड आ जाती है. लेकिन अगर हम वाटरशेड मैनेजमेंट करते हैं तो उससे फ्लड आने के चांसेस कम हो जाते हैं और जो पानी हम स्टोर्ड है उसको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. And in India, different communities use hundreds of indigenous water saving methods to capture every trickle of water that had fallen on their land. और भारत में तो एंशिएंट टाइम से ही वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है. And now various organizations are working on rejuvenating ancient systems of water harvesting as an alternative of mega projects like dams. और आजकल बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन एंशिएंट इंडिजीनियस वाटर सेविंग मेथड्स को फॉलो करने के लिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बजाय कि बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाने के. एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्पेशल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स. एंड इन इंडिया डिफरेंट कम्युनिटीज़ यूज hundreds of indigenous water saving methods. So these methods are digging of small pits and tanks. छोटे छोटे पिट्स और टैंक्स बना के, जिससे मॉनसून के दिनों में जब बारिश होती है तो वो पानी उन छोटे छोटे टैंक्स में स्टोर हो जाता है. एंड सेकेंड इज पुट इन प्लेस सिंपल वाटरशेड सिस्टम्स. छोटे छोटे वाटरशेड सिस्टम्स बनाए जाते हैं जिससे पानी को कैप्चर करके उसको स्टोर करके फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है. एंड बाय बिल्डिंग स्मॉलर अर्दन डैम्स, कंस्ट्रक्टिंग डाइक्स, सैंड एंड लाइमस्टोन रिजर्वॉयर्स. बहुत बड़े बड़े डैम्स ना बना करके छोटे छोटे अर्दन डैम्स बनाए जाते थे और डाइक्स बनाई जाती थी, सैंड और लाइमस्टोन रिजर्वॉयर्स. एंड डाइक्स दे ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर and increase the groundwater level. And next is setup of rooftop water collecting units. So these are some indigenous water saving methods by which people capture every trickle of water that had fallen on their land.